Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Today's video is going to be a story time on how I sneaked in my fourth dog and I hid her from my parents for like 2-3 days from my dad. So I'm going to tell you the whole backstory and how I got her and how I planned to get her. She's Bella. She's around 1.5 years old. She's my fourth dog. I sneaked her in. Guys, she's the biggest licker. बेला को एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है चाटना. She cannot control her emotions. That's one thing about her. So a little backstory. I already have now I have 4 dogs, but जब मैं बेला को लाई थी तब मेरे पास 3 dogs थे. And the one's like 15 years old, one is now 9 years old, and the other one is 5 years old. So, my mom was actually a dog hater, but when she got married into my dad's family, और फिर मैं पैदा हुई तो मेरे को इतना ज़्यादा डॉग्स और एनिमल्स का क्रेज़ था कि मैं कभी डॉग्स आती थी, इवन लाइक मैं स्ट्रे डॉग्स को भी नीचे से लेन से उठा के ले आती थी और मैं उन्हें छुपाती थी, मैं उनको खाना वाना खिलाती थी और फिर मैं छोड़ आती थी. So I've always been someone who's been like really obsessed with animals. So this one day I was like off to college और मेरी presentation थी एंड मैं लिटरली मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और मेरा ग्रुप बाकी बात कर रहा था तब मेरी हो गई थी. तो मेरे ना दिमाग में लाइक इट जस्ट हिट मी बेसिकली माई नेबर हैज़ दिस डॉग and he's the same breed as Bella. And I used to meet him on walks and everything, and I found him to be a very, very sweet dog. Extremely sweet, ठीक है. तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया. तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं फोर्थ डॉग लूँगी या ऐसा कुछ, और मतलब मैं प्लान कर भी नहीं सकती थी बिकॉज everyone in my family, like I thought that they would go completely against me ki, these 3 dogs are already so hard to handle, and then you're getting a fourth dog and blah blah blah. But तब तो मैंने भी सोचा नहीं था. It was a very impulsive decision which I don't regret at all. तो बेसिकली मेरी प्रेजेंटेशन हुई. मैंने मेरे नेबर से नंबर मांगा जिनसे उन्हें लिया था. तो I just texted her asking if she has any puppies available, blah blah blah, and that I want a female. So उन्होंने ना मेरे को बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजी. मैंने फ़ोटोज़ देखी. मैंने तभी के तभी आई सॉ बेला और फिर मैंने फाइनलाइज़ कर लिया. और फनी थिंग इज़, ओके आ जाओ बेबी, मैंने कहा था ना शी इज़ द बिगेस्ट लिकर एवर. एंड मैंने फाइनलाइज कर लिया. दैन द गर्ल जिससे मैं बेला को ले रही थी उनने मेरे को कहा कि शी जस्ट फेल. ओके, उनने मेरे को कहा कि यू विल हैव टू पे अस इन एडवांस एंड देन ओनली वी कैन गिव यू द डॉग. ठीक है. तो उन्होंने मेरे को कहा कि you will have to do like 50% advance payment and blah blah blah. She knows that we're talking about her. Blah blah blah. 50% पहले देनी पड़ेगी. तो मेरा वैसे भी इतना impulsive decision था. तो मैंने सोचा कि यार अब I'll have to figure something out, because if I send her like blah 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 amount, my dad's gonna end up asking me कि आपने ये कहाँ से ये किसको भेजे blah blah blah. तो फिर मैंने सोचा, मैंने पूरी प्लानिंग की और ये सब मैंने एक दिन में किया गाइस, लिटरली. तो as soon as I got off from college, as soon as I got free, मैं गई सीधा to this guy that I know. मतलब he takes cash and then he does the payment himself and bank transfer whatever. तो मैंने उसे कैश दिया और फिर उसने वो हाफ पेमेंट कर दी. एंड माई मॉम वॉज कॉलिंग माई ड्राइवर आस्किंग कि मैं कहाँ हूँ, एंड लाइक बिकॉज इट वॉज अराउंड 7:30 एंड आई गॉट फ्री अराउंड like 5. तो आई वॉज ऑलरेडी like half an hour late घर पहुँचने के लिए. तो my mom called my driver told her that we're at this market blah blah blah. So my mom called me asking what I'm doing at the market. So I just told her that I had to get a few things from the chemist and blah blah blah. But then I in fact ended up getting all the dog essentials that I needed: her food, her toys, her bed, everything that I possibly needed. मतलब समझ गए ना, पपी एसेंशियल्स. हाँ, तो वो सब हुआ. फिर उसके बाद अगले दिन मैंने ना अपने ड्राइवर को बहुत ज़्यादा ऐसे समझा दिया था कि प्लीज़ किसी को मत बताना, आई एम डूइंग दिस एंड लाइक
लोकेशन भी गलत बता देना अगर कोई पूछे तो प्लीज़ मत बताना ये वो. तो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज एंड मैं गई भी, मैं कॉलेज गई, बट देन मैं जल्दी वहाँ से निकल गई. एंड देन मेरे पास डॉग डिलीवर हो रहा था नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे एज इन जिस दिन की मैं अभी बात कर रही हूँ. तो मैं वहाँ पे गई, मैंने बेला को पिकअप किया, बट द थिंग इज़ दैट जो डॉग की मैंने फ़ोटो देखी थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम बेला. The dog that I had chosen had a white face, but Bella had like a pinkish face with मतलब white hair, blah blah blah. तो बट मेरे को बेला को जब मैंने पकड़ा, मेरे को पता नहीं उससे इतनी अटैचमेंट हो गई. एंड मेरे दिमाग में था कि अब मेरे पास ये आ गया, लाइक आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर. एंड मैंने तो यही लाइक गाइस मेरे से इंस्पायर मत होना कि ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन ले लो और बिना अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताए, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा कलेश हुआ था. आई एम गोना टेल यू. ठीक है, सो आई गॉट बेला. एंड तो मैंने सोचा कि यार कोई नहीं, अब मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और मेरे को पता था दैट आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ पपी एंड लाइक अ डॉग. एंड लाइक 1.5 years later it was the best decision of my life that I've ever made. I'm not even kidding. And not even for a single moment have I regretted getting her. तो मैं उसे घर लाई एंड शी केम लाइक इन अ ब्लू बास्केट. एंड मैंने ना ड्राइवर को बोल दिया था कि किसी को मत बताना कि मैं डॉग लाई हूँ या ऐसा कुछ भी, या हम इधर उधर गए थे इसको पिक करने, या मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी, ऐसा कुछ भी मत बताना. तो उसने लिटरली नहीं बताया, बट आई वॉज वेरी शॉक्ड बिकॉज ड्राइवर्स यूजली एंड अप स्निचिंग. तो ये हुआ. उसके बाद मैं घर पहुंची, मैंने बेला को हाइड कर लिया, मतलब मैं सीधा लिफ्ट से अपने रूम में आ गई थी. एंड देन आई डिड नॉट फेस माई मॉम, ब्ला ब्ला. देन लाइक 2 hours later मैंने बेला को खाना वाना खिला दिया. एंड आई टोल्ड माई मॉम दैट आई हैव टू टेल हर समथिंग. सो मेरी मॉम ऐसे डर सी गई. But then I called her in my room and she came and I was holding Bella. And when Bella came, she was like very little. She was around 200 grams and she was like a white fluffy ball. So I told my mom that, ये rabbit है, ये dog नहीं है, ये rabbit है. And she literally gave into it for a second. Not for a second, but for a minute or two. Till I kept Bella on the floor and she started walking. And my mom literally got so pissed at me. I don't think I've ever seen her be this angry. और जो पहले वाला डॉग भी है, मतलब my third dog जो मैं लाई थी, वो भी मैं छुपके से लाई थी. पर वो मैंने सिर्फ पापा से छुपाया था, वो मम्मी को पता था. शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लान इवन दो शी वॉज अगेंस्ट माई प्लान. तो मैं बेला को लाई एंड देन माई मॉम गॉट लाइक रियली पिस्ड. और वो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई बिकॉज उनने मेरे को कहा था कि बिकॉज आईवी जो मेरा थर्ड डॉग है, शी इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर एंड शी इज़ अ सुपर हाई एनर्जी डॉग. एंड उसकी मेंटेनेंस फिर भी थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर डॉग्स दैट आई हैव, but nonetheless everyone loves her the most. तो me mom thoda ऐसे, she was like a little scared that we're gonna have to take care of another dog because getting a dog is a whole another level of responsibility. But Bella की responsibility तो पूरी मेरे पे है because मैंने तो शुरू में आते ही बोल दिया था कि don't worry, I'm gonna take care of her, blah blah blah. But my mom, she didn't like trust me at that time. So उसके बाद like I asked her not to tell dad and everything. And the craziest thing was that we had a family event coming up in the next, like I think the next day, हाँ next day हमारा family का event था बहुत बड़ा. And which there was no way that I could miss. Like there was zero chances that I could miss it. ठीक है. तो पहले तो मैं मम्मा को इतना ज़्यादा लाइक समझा रही हूँ एंड एवरीथिंग. एंड शी नो, इट वाज द थर्ड डे पे था हमारा फैमिली इवेंट. तो मेरी मॉम ना पहले उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा थी. एंड लाइक शी वाज लिटरली लाइक इसको वापस दे के आओ, इसको वापस दे के आओ. बट बिकॉज मेरे को इतनी अटैचमेंट हो गई थी इससे, और वो ऐसी टोन में नहीं कह रही थी जिसमें मैं आपको कह रही हूँ, बट लाइक शी वॉज लिटरली शाउटिंग एट मी. आई हैव नेवर सीन हर दैट वे, नेवर एवर. एंड she just keeps on licking me. Guys, meet Bella once again. ठीक है. तो where was I? Yeah. So it was on the third day and
तो मेरी मम्मी को लाइक बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि इसे वापस दे के आओ, इसे वापस दे के आओ, मैं पापा को बता दूँगी, आई आस्क हिम टू लाइक गिव हर बैक, मैं इसे छोड़ के आ जाऊँगी, ब्ला ब्ला ब्ला. और देयर वाज नो वे इन hell that I was going to give up this dog that I've taken full responsibility of. Guys, आप मेरी तरह मत बनो, ठीक है? अगर आप डॉग ला रहे हो, so like stick by. You should know that you will be able to take care of the dog. You'll be able to handle the finances, the responsibility that comes with it, every single thing. And आप में इतना like होना चाहिए courage that you even go against your family if you know they're against you keeping a puppy. और अगर आप कुछ animal ले आए हो तो आपने उसकी responsibility ले लिया, आप उसको कहीं ऐसे नहीं छोड़ के आ सकते. But I knew that I will stick by my decision and no matter what I'm gonna keep this puppy. तो फिर नेक्स्ट डे मेरी मम और ज़्यादा मेरे से लड़ने लग गई. तो मेरे को ऑनेस्टली इस पॉइंट पे डर लगने लग गया था. एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स स्कैर्ड ईजिली. बट मेरे को ये लग रहा था कि आई होप ये लोग खुद, यू नो, इफ आई एम नॉट देयर फॉर लाइक इवन 10-20 मिनट्स, ये लोग बेला को ना दे आएँ या ऐसा कुछ ना कर दें, ठीक है, वाइल्ड सा. तो मैं तो बेला को छोड़ ही नहीं रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं बेला के पीछे 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 ही थी. Then comes the crazy part, family event. Now the thing is that Bella was so little. She was, I think, around 3 months old, and वो size में भी इतनी छोटी थी. और मैं उसे literally 2 दिन पहले लाई हूँ और मैंने कुछ नहीं सोचा कि event है कुछ भी, because वैसे भी impulsive decision था. So we have this helper who really likes our dogs, loves in fact. तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो planning करनी पड़ेगी, and my mom was in it with me because she couldn't do anything about it. I was very adamant about keeping Bella and taking care of her, and there was she also knew that now I'm not going to give Bella up. तो हमने ना, हम like, mind you, me, my brother, my mom and my dad, we had to go in a car like साथ में and with Bella. And by this time, like by the second day, my dad did not, by the third day also, my dad did not even have a clue that, you know, हमारे घर पे एक नया puppy आ गया है और ये सब. Because I was really really scared that he's going to burst out at me or whatever. ठीक है. तो मैंने बेला को, मेरे पास एक बड़ा सा लाइक शॉपिंग बैग पड़ा था, उसमें लाइक आई सेट हर बेडिंग अप एंड एवरीथिंग, एंड आई टुक हर विद मी इन द कार, एंड नो वन न्यू दैट उसमें बेला थी एक्सेप्ट माई मॉम एंड माई मेड. माई डैड एंड माई ब्रदर डिड नॉट नो. तो फिर हमने बेला को ऐसे डाल दिया उसमें, एंड काफ़ी बड़ा था, वॉज अ वेरी कम्फर्टेबल स्पेस. शी वॉज वेरी कम्फर्टेबल सिटिंग इन देयर. And I was like petting her throughout so that she, you know, she doesn't like bark or anything. तो हम वहाँ पे पहुँच गए. Thank God इसने कुछ भी नहीं बोला. मेरे डैड को लिटरली एक हिंट भी नहीं मिला कि कुछ है, like something shady or whatever. As soon as we reached the location, और मैं मेड को इसलिए लेके गई थी ताकि अगर मेरे को इवेंट अटेंड करना पड़े तो बेला कैन बी देयर इन द रूम विद माई हेल्पर. तो आई लेफ्ट, लाइक मैंने उन्हें रूम वूम दिया, और बेला और माई हेल्पर दिव्या, दे वर लाइक सिटिंग इन द रूम एंड they were like playing blah blah blah. मैं बीच बीच में ऊपर आती रहती थी, like every 10 minutes I used to like come and check up on Bella if she's doing fine, if she's had food, whatever. तो ये सब हुआ. Then the next day everything went smoothly, and imagine मैं उसे वापस भी लेके गई हूँ. तो my dad was in the car and still he did not get to know. किसी को कुछ नहीं पता चला. मेरी पूरी family थी. By the way, I live in a joint family and no one knew, not a single person. ठीक है. तो when I reached the hotel, I told my brother that I've got Bella. मेरे भाई को फिर भी पता था, मैंने उसे फ़ोटो भेज दी थी, ठीक है, बेला की और ये सब लाने के बाद. तो उसे फिर भी पता था. तो होटल जाके मैंने बताया उसे कि मैं बेला को भी लाई हूँ रूम में. तो ही वेंट एंड मेट हर एंड एवरीथिंग. वो थोड़ा, मेरा भाई मेरी साइड पे रहता है, लाइक ही डजंट गो एंड स्निच ऑन मी. ही यूज्ड टू, बट अब वो नहीं करता. देन द नेक्स्ट डे, क्या कहते हैं, माई मॉम टोल्ड माई डैड. आई वोक अप एंड माई डैड लाइक was knocking on my door, और मेरे को लगा shit यार, कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरी. तो I was too scared. My mom and my dad were standing at my door and they wanted to meet Bella. So then my dad is also a dog lover, but I mean, fourth dog है, तो I knew he would somewhere be against, you know, Bella or me getting her. But surprisingly he did not say even a word.
he was happy with Bella. जबकि मैं इतने टाइम से डरी हुई थी, मैं छुपा रही थी कि कुछ यार उल्टा सीधा ना हो एंड दैट वो मेरे को डांटे ना और ये सब। उनने मेरे को कुछ नहीं कहा। मेरी मॉम ने मेरी जान निकाल दी थी फॉर लाइक 2-3 days। आई एम नॉट इवन किडिंग। इट वाज सो स्कैरी, नॉट फॉर मी बट फॉर बेला। कि मेरे को लग रहा था यार दिस इज नॉट एन एनवायरनमेंट आई वांट हर टू फेस। लाइक आई वाज फीलिंग रियली बैड, बट नाउ everything, कुछ दिनों बाद ही everything was normal, and now like my mom is literally obsessed with Bella. She's obsessed with all the girl dogs that we have. She does not like Buzzy. He's the boy dog. He's the only male that we have. एंड बेला लिटरली अब सबकी जान बन चुकी है। इट इज़ नॉट इवन फनी। और अब लाइक जब मेरी मॉम बेला को पेट कर रही होती है एंड एवरीथिंग, तो मैं अपनी मॉम को बोलती हूँ कि आप ही बोल रहे थे ना ऐसे कि वापस देखे आओ, एंड यू वर सो अगेंस्ट मी, यू सेड so many things to me, blah blah blah. For what? Like you ended up falling in love with Bella, and I am the one who takes up all the responsibility. So this was how I got Bella and how I hid her from my family. And फिर मैंने थोड़े दिन बाद अपने like जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सब उन्हें सबको बता दिया था। फिर मेरे डैड को खुद day 3 day 4 पे पता चला था आफ्टर दैट फैमिली इवेंट हैपेंड। एंड देन मैंने सबको बताना शुरू कर दिया, मतलब फैमिली में और ये सब। बट दिस वॉज हाउ आई गॉट बेला, एंड आई वुड नॉट recommend doing this at all. Please मेरे से influence मत होना. This was just a story time, and मैंने सिर्फ तभी लिया था because I knew that I would be able to take care of her fully. I would take responsibility of her, and that I was not gonna give up, even though my mom was really against the idea of me getting a 4th dog. But ठीक है, मतलब अब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, I believe, because I got Bella, and then there's nothing that makes me happier than my dogs. And yeah, so this was my story time, and this was my first time doing a story time video. So let me know if you want more story times, and thank you so much for watching. Bye.